I hope everyone is fine. Some of the students have asked me to discuss the previous lecture. It's not possible for me to repeat the lectures in totality, but in last lecture we have discussed the concepts and conventions. In case you find problem, you just let me know through the chat box, and then we'll discuss it in the end of the class. By the time you can just go through all the concepts and conventions from book. जिसमें आपको कहीं particular किसी concept में problem होगी, then I can just explain that concept. Now today we are going to start with the concept of final accounts. Final accounts में हम लोग जो accounts बनाते हैं, basically we prepare final accounts in which we prepare trading account, profit and loss account and balance sheet. Now, why we prepare the final accounts? We just prepare the final accounts to calculate the amount of gross profit or net profit we have earned during the year, or in case you have incurred the loss, you have to calculate it by preparing the trading account and profit and loss account. Apart from these two accounts, we prepare balance sheet, which basically shows the financial position of a company as on a particular date. Now, when we prepare trading account and profit and loss account, the format is generally, it's basically the trading account and profit and loss account of, then the company name, and then from the period ending on. So it's basically, we talk of the accounting concept in which we have studied that there is a period of 12 months, which is the accounting period of financial year, you can say, starting from 1st of April to 31st of March, and it may be from 1st January to 31st of December. तो पूरे साल के हम अकाउंट्स जब बना रहे हैं वो हमारा अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट के बेसिस पर, अकाउंटिंग ईयर जो हमारा होता है उसके हिसाब से हम अकाउंट्स बनाते हैं. वी जस्ट कैलकुलेट द प्रॉफिट or loss figure, and we have the balance sheet as on a particular date. So every time you must be remembering, because you have done this chapter in your 11th and 12th. When we prepare balance sheet of a company is prepared as on a particular date. So it's balance sheet of like X Limited as on. तो दोनों में difference क्या है? ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा पूरे एक टाइम पीरियड के लिए बनता है जब हमारा अकाउंटिंग ईयर के हिसाब से है, और उसके हिसाब से हम प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं. व्हेन वी प्रिपेयर बैलेंस शीट, इट्स बेसिकली शोइंग द एसेट्स एंड लायबिलिटीज प्लस कैपिटल ऑफ अ कंपनी एट अ पर्टिकुलर टाइम. एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइम पे हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो उसको हम डिपिक्ट करते हैं, and we prepare the final accounts. Now, when we prepare the final account, some points are supposed to be taken care of, like we have capital expenditures. Basically, जो हमारा trading account, profit and loss account है, what we are doing is हम उसमें expenses को, losses को, expenses को revenues या gains के साथ match करते हैं, जिसके बेसिस पर हम ये कैलकुलेट करते हैं कि जो भी हमारा अकाउंटिंग पीरियड है या जो पीरियड अंडर स्टडी है जिसके हम अकाउंट्स बना रहे हैं उस टाइम पे हमने प्रॉफिट अर्न किया है या लॉस इनकर किया है. तो वी हैव टू सेग्रीगेट द एक्सपेंडिचर्स और द इन कैटेगरी ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये तीन तरीके के हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट capital expenditure, first category, it's basically the amount we spend on the purchase of any fixed asset for the use of that asset in the business for long time period. तो हम अगर कभी बिजनेस में कोई फिक्स्ड एसेट परचेज करते हैं जिसको हम चाहते हैं कि परमानेंटली या लंबे टाइम के लिए हम उसको बिजनेस में यूज करेंगे, then that expenditure would be treated as the capital expenditure. For example, if I talk of tangible assets, टेंजिबल एसेट्स में अगर मान लीजिए मैं कोई प्लांट मशीनरी ले रही हूँ, लैंड ले रही हूँ, बिल्डिंग है, फर्नीचर है, कोई व्हीकल है, कोई इक्विपमेंट्स हैं जो आप बिजनेस में यूज करने वाले हैं, उस पर्पस के लिए आप कोई भी टेंजिबल एसेट अगर आप परचेज करते हैं तो वी अज्यूम कि इट विल बी यूज्ड फॉर इट्स एस्टिमेटेड लाइफ, या लंबे टाइम के लिए हम उसको यूज करेंगे. देन दैट एक्सपेंडिचर वी incur to acquire these kind of assets, that is the capital expenditure. Apart from the tangible assets, you may have the purchase or the payment which has been made towards the acquisition of intangible assets. अब intangible assets कौन से होते हैं? Like you have goodwill, you have trademark, patents, copyrights, ये हमारे intangible fixed assets होते हैं. अगर उनके लिए भी हम कोई पेमेंट करते हैं, then that also is the capital expenditure.
Now, if apart from इसके अलावा में if you have the investment in shares or debentures लंबे टाइम के लिए, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है that is also basically the capital expenditure. In just the concept is कि अगर मैं कोई भी एसेट को परचेज कर रही हूँ, कहीं पे भी पैसा इन्वेस्ट कर रही हूँ बिजनेस में, और उसको लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट है या लंबे टाइम के लिए उसका यूजेज है, then that expenditure will be the capital expenditure. Revenue expenditure जो second category है, it's basically the money which has been spent on any kind of goods or services. If I am purchasing the stock, तो उसमें जो बिजनेस में यूज हो रहा है, और वो जो हम पैसा खर्च कर रहे हैं कोई मटेरियल को अक्वायर करने के लिए या कोई सर्विसेज लेने के लिए, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है कि रूटीन के जो हमारे बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनको करने के लिए वी आर स्पेंडिंग मनी, या हम कोई फिक्स एसेट्स की मेंटेनेंस कर रहे हैं रूटीन में, जो रिपेयर्स हैं, तो जो हमारा अगर फिक्स एसेट्स भी हैं तो फिक्स एसेट्स को अगर मैं परचेज करती हूँ तो वो हमारा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, लेकिन उनको मेंटेनेंस के लिए, मेंटेन करके रखने के लिए, रिपेयर्स अगर हैं, कुछ खराब हो गया, डैमेज हो गया, उसको ठीक करने के लिए अगर मैं पैसे खर्च कर रही हूँ रेगुलरली, प्रोडक्टिविटी मेंटेन करके रखने के लिए, तो वो जो भी एक्सपेंडिचर्स होते हैं दे आर नोन एज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. Like if I'm just purchasing the raw material which is supposed to be used for the manufacturing process, अगर मैं रेंट दे रही हूँ, लाइट के पैसे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रही हूँ, रिपेयर्स दे रही हूँ, वेजेस, सैलरीज हैं, स्टेशनरी आइटम्स हैं, तो वो सारी की सारी रेकरिंग इन नेचर होती है, और वो रूटीन में जो बिजनेस ऑपरेशंस हैं उनको कैरी आउट करने के लिए आई एम जस्ट स्पेंडिंग द मनी. Then these all kind of expenditures are known as the revenue expenditures. Then we have the third category, which is the deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure are some kind of expenditures which are to certain extent primarily they are revenue in nature, but the difference is that the benefit you will be getting from those kind of expenditures will not be consumed in a single year in which the expenditure has been incurred. Like when we talk of the revenue expenditure, what happens is जब भी हम कोई खर्चा कर रहे हैं तो उससे कोई ना कोई हमें किसी तरीके का गेन हो रहा है, किसी तरीके का हमारे पास कोई रेवेन्यू जनरेट हो रहा है. लाइक अगर मैंने स्टॉक को परचेज किया, स्टॉक इज बीइंग कंज्यूम्ड टू हैव द प्रोडक्शन हो रही है, यूनिट्स आ रही हैं, उसको बेच रही हूँ एंड आई एम गेटिंग दी रेवेन्यू, प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ. तो कोई भी हम खर्चा करेंगे तो उससे हमें कोई ना कोई इनकम जनरेट हो रही है, कोई ना कोई एडवांटेज होगा. वो एडवांटेज आपको ये चीज देखनी है कि कब है. In case you are spending some incurring some expenses and the revenue is generated in the same time period during the same year, और उसके बाद नहीं है, सिर्फ उतने ही टाइम, एक साल का अगर अकाउंटिंग ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, और उस दौरान अगर मैंने कोई खर्चा किया है, बियर किया है कोई एक्सपेंसेस, और उससे जो मुझे इनकम जनरेट हो रही है वो सिर्फ उसी साल की है, तो दैट विल बी द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कि वो सिर्फ उससे जो एडवांटेज मुझे हो रहा है वो सिर्फ उसी दौरान पे मुझे मिल रहा है, उसके बाद नहीं. अगर कोई ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो मैंने बियर किए लेकिन उसका जो बेनिफिट मुझे मिल रहा है वो मुझे आगे आने वाले टाइम में भी मिलेगा, then that will be taken as the deferred revenue expenditure. In deferred revenue expenditure you have the example like we have the payment done towards the advertisement. अगर आज मैं एडवर्टाइजमेंट पे पैसा खर्च करती हूँ तो उसके जो बेनिफिट मुझे मिलते हैं वो सिर्फ इसी साल नहीं मिलते, उसके आगे आने वाले टाइम में भी मुझे एडवांटेजेस मिलते हैं. तो एक्सपेंसेस इस तरह के जो होते हैं दे आर दी deferred revenue expenditures which you bear today, and the benefit from that will be taken over number of years. तो जो उसका benefit होगा वो बहुत ज़्यादा टाइम तक आपको मिलेगा. Now these are the three categories or three different types of expenditures. I hope it's clear to you all. Then you have the डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. एक कैटेगरी ये भी होती है एक्सपेंडिचर्स की. अगर हम बात करते हैं तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल एंड अकाउंट को प्रिपेयर करने के टाइम पे हमें ध्यान रखने होते हैं. नाउ व्हाट आर द डायरेक्ट एक्सपेंसेस? डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर
those expenses which have been incurred by a company just to bring the goods to the place of business or trade, and the goods are placed in a saleable position. तो मैंने अगर कोई भी expenses bear किए हैं, incur किए हैं, किस लिए कि जो goods हैं, जो stock है, inventory है, उसको मैं अपने business में लेकर आ रही हूँ और उसमें उसको यूज करके प्रोडक्शन कर रही हूँ, या सर्विसेज अगर मैं प्रोवाइड कर रही हूँ तो उसके लिए मैं कोई ना कोई जो सर्विसेज दे रही हूँ उसके लिए जो मुझे रॉ मटेरियल चाहिए वो मैं एक्वायर कर रही हूँ. बेसिकली इफ आई एम टॉकिंग ऑफ द प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग, तो एनी एक्सपेंस विच इज having a direct impact on the production, then it will be the direct expense. For example, if I'm just manufacturing some product, I need the raw material for that. तो जो भी raw material है, that is mandatory to be there. And until unless I have the raw material with me, I am not able to manufacture the product. To manufacture the product, I need some machinery, let's say. So that is essential thing कि वो मेरे लिए एक mandatory चीज है, though it's the fixed asset. तो कोई भी ऐसी एक्सपेंसेस जो मेरे लिए ज़रूरी हैं बिजनेस को रन करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग पे जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट है, then that will be treated as the direct expenses. For example, if I just talk of the purchase of raw material, मैं अगर purchases कर रही हूँ तो purchases ही नहीं करूँगी तो जाहिर बात है that would be having a negative impact on the production. अब मान लीजिए मैंने purchases किए raw material के, now at the time of purchases we may have some kind of other expenses also, like we may have freight charges or carriage inwards or insurance in transit, you may have excise duty, इस तरह के आपके expenses, loading charges you may have. तो इस तरह के जो खर्चे हैं वो आपने क्यों bear किए? क्यों? क्योंकि वो आपने रॉ मटेरियल परचेज करने के टाइम पे किए. अगर वो खर्चे मैं नहीं करूंगी, now if the supplier has asked me to bear the transportation expenses, उसने बोल दिया आपको रॉ मटेरियल मिल जाएगा, इस रेट पे मिलेगा, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन के खर्चे हैं वो आपको ही देने पड़ेंगे, अदरवाइज मैं नहीं बियर करूंगा, आपको चाहिए तो आपको वो खर्चा उठाना पड़ेगा. अब जो ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस मैं बियर कर रही हूँ जस्ट टू गेट द रॉ मटेरियल इन माय कंपनी सो दैट आई कैन गो फॉर द प्रोडक्शन प्रोसेस, देन दैट वुड बी द डायरेक्ट एक्सपेंस. क्यों? क्योंकि अगर मैं वो खर्चा बियर नहीं करती तो सप्लायर मुझे रॉ मटेरियल नहीं देता, रॉ मटेरियल नहीं आता तो प्रोडक्शन नहीं होती. So any expenditure which is directly related to the manufacturing process, then that would be the direct expenses. इसके अलावा में you may have the expenses which a manufacturer can incur, like wages and salaries है, factory rent है, factory insurance है, lighting है, salary maintenance है, you may have used the water, coal, gas, power, lighting, इस तरह के जो सारे के सारे हैं ये भी आपके मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में ऐड हो जाते हैं. Then when we talk of the preparation of trading account, now the trading account is basically a kind of the account where you have to you have to prepare the trading account when we start with the entry of opening stock plus purchases on the debit side, and then we transfer all the direct expenses we have incurred to acquire or bring the goods which we have purchased in the organization so that we can have the प्रोडक्शन. लाइक अगर मैंने परचेजेस किए थे तो वो ओपनिंग स्टॉक में मैंने ऐड करके दिखाए डेबिट साइड पर. उसके अलावा में कोई भी ऐसा खर्चा जो मैंने एक रॉ मटेरियल एक्वायर करने में एक्सपेंसेस बियर किए हैं, लाइक इफ आई टॉक ऑफ कैरेज इनवर्ड्स, इफ आई टॉक ऑफ फ्रेट, इफ आई टॉक ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस लाइक कैरेज इनवर्ड्स, कोई भी ऐसा खर्चा अगर है then that would be transferred in the debit side of the trading account. उसके अलावा में क्रेडिट साइड पे हम लोग दिखाते हैं सेल्स लेस सेल्स रिटर्न्स. ऐसे ही परचेजेस में नेट अमाउंट आता है लेस परचेज रिटर्न्स, और क्रेडिट साइड पे वी हैव द एंट्रीज ऑफ सेल्स, नेट सेल्स, बेसिकली सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न्स एंड द क्लोजिंग स्टॉक. अब ये सारी चीजें आप लोगों ने 11th-12th में स्कूल टाइम पे आप लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा हुआ है, एंड आई होप दैट यू ऑल रिमेंबर द बेसिक फॉर्मेट ऑफ फाइनल अकाउंट्स. अब इसके अलावा में
जब हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो आई जस्ट एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस. एनी एक्सपेंस व्हिच इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, then that would be the direct expense which is supposed to be transferred in the trading account. अब indirect expenses कौन से होते हैं? Indirect expenses are all those expenses which they don't have the direct impact on the production, though they are necessary to be incurred, लेकिन उनका प्रोडक्शन पे कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होता है. अब आपके पास लेट्स से एडजस्टमेंट्स हैं या जो ट्रांजैक्शंस हैं, एक्सपेंसेस की जो एंट्रीज हैं, अब उसमें लाइटिंग दी हुई है, इलेक्ट्रिसिटी दी हुई है, कोल है, पावर है, स्टोर्स हैं, इस तरह के वेजेस हैं. तो वेजेस आर बेसिकली the direct expenses which are given to the labor who's working on the machine and producing the product. Salaries employees को दी जाती है, इसीलिए if you do remember then when we have these two entries, wages and salaries, तो wages हम trading account में दिखाते हैं just because it's a direct expense. जो हमारी labor है, वर्कर्स हैं हमारे जो मशीन पे काम कर रहे हैं, उनको हम पेमेंट दे रहे हैं, और सैलरीज हमारे ऑफिस स्टाफ या एम्प्लॉइज को दी जाती है, दैट इज द इनडायरेक्ट एक्सपेंस. These are the employees who are not actually producing or manufacturing the product, तो इसलिए वो आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आता है. अब कुछ एग्जांपल्स, कुछ एंट्रीज ऐसी हैं जैसे लाइटिंग है, हीटिंग है, फैक्ट्री का इंश्योरेंस है, रेंट रेट है, फ्यूल है, ये जो कुछ एक्सपेंस आपके एक्सपेंसेस हैं, दे आर बेसिकली द फैक्ट्री एक्सपेंसेस. कुछ स्टूडेंट्स ने जो ट्रांजैक्शंस की हुई हैं या जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, व्हाट वी जनरली डू इज we just transfer all these kind of expenses in your profit and loss account, assuming that they are the indirect expenses. अब टेक्निकली अगर हम बात करें तो फैक्ट्री प्रीमाइसेस अगर हैं, फैक्ट्री प्रीमाइसेस में यू हैव डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क्स गोइंग ऑन. You have the production process which is going on in the factory premises. We have the office staff who is working, administrative staff is also working. So everywhere you are using the electricity. रेंट पे अगर वो बिल्डिंग है तो रेंट पे भी आप फैक्ट्री जो है, फैक्ट्री में बहुत सारे काम होते हैं, एंड एवरी पर्सन हु इज वर्किंग इन द फैक्ट्री इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, दो दे हैव अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ओवरऑल वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. बट व्हाट हैपेंस इज, now if I say that you have the factory rent or factory lighting, now sometimes what the authors say that this should be treated as the direct expenses, क्योंकि अगर वो इलेक्ट्रिसिटी या पावर की कंजम्पशन में नहीं करूंगी तो how will I be able to use the machines and manufacture the product. तो इसलिए अगर वो मैं अगर मेरे पास पावर है ही नहीं तो I'll not be able to manufacture the product, तो इसका मतलब वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, and as per the concept it should be there in the trading account. लेकिन वहां पे क्योंकि आपके फैक्ट्री प्रीमाइसेस में ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ भी काम कर रहा है, एंड एवरी पर्सन हु इज यूजिंग और कंज्यूमिंग द पावर इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, तो वो वाला टेक्निकल हिसाब से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है. नाउ इन केस यू हैव सम पॉइंट on the basis of which we can segregate the total power consumption into direct expenses and indirect expenses, तब तो हम इतना टेक्निकलिटीज में जा सकते हैं कि हम उसमें से जो हमने डायरेक्ट एक्सपेंसेस कंज्यूम करने यूज किए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड पावर कंजम्पशन है, वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाना चाहिए, बाकी सारा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस में जाना चाहिए. तो व्हाट हैपेंस नाउअडेज कि जब हम फाइनल अकाउंट्स में क्वेश्चंस करते हैं तो वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ सेग्रीगेशंस given in the question. Now some teachers or some authors you can say that they say that these kind of expenses of factory lighting, factory rent or power, gas, fuel, oil, इस तरह के जो हैं वो सारे के सारे expenses direct expenses treat करने हैं, and you have to transfer all these kind of expenses in the trading account. ठीक है, और कुछ के हिसाब से it is to be taken care of in the preparation of profit and loss account, assuming that they are majority of the amount is the indirect expenses, because we are not segregating the amount in the direct or indirect expenses. So until unless the question is mentioning you, अभी as such BCom में आप लोगों के लेवल पे उसकी segregation नहीं आएगी, because वो हमारा एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, अलग पेपर हम लोग बाद में पढ़ते हैं फोर्थ सेमेस्टर which is cost accounting. So here you have just to see whether all such kind of expenses are to be transferred to trading account or profit and loss account.
when I'll be just solving the question, I'll just take all these kind of expenses in the profit and loss account. In case any one of you has studied these expenses to be transferred to trading account, then you can go ahead, no issues. I hope till now it's clear to you all, or is there any doubt till now? Okay, I have shared two questions with you in PDF form in the chat box. You just check your chat box so that you are able to, have the questions, because we are going to. Okay, Bhavna has asked me to share the notes with you all people. I'm sorry, Bhavna, I don't prepare notes for accounts paper, and I don't think that you need notes. In case you have the study material from SOL, that will be good enough. And apart from the SOL, study material, you just can go through one of the books I have mentioned. I just referred three books in the last class. One is by Dr. J.R. Monga. Another book is by Dr. D.K. Goyal, and the third book I referred was by Dr. D.K. Goyal. You can have either of these books, and you just go through from those books, because practical paper hai. Simran, I have shared the PDF with two questions of final accounts. Okay, Siddharth has asked me to explain in Hindi. Okay. Okay, Lalit has asked me to add him in the WhatsApp group. Lalit, I'm not there in the WhatsApp group. कोई भी मैं किसी भी ग्रुप में नहीं हूँ. In case you all people have some WhatsApp group, then you can ask other students to join or let other people join. I don't have any WhatsApp group. ओके नम्रता, अगर आपको मेरी स्क्रीन पे से क्लैरिटी में नहीं दिख रहा है, सम ऑफ द वर्ड्स आर बीइंग ब्लर्ड, मे बी कि शायद कोई टेक्निकल नेटवर्क इशू है जिसकी वजह से नहीं है, बिकॉज मेरे पास वो क्लैरिटी से आ रहा है. एंड प्लीज शो कंप्लीट क्वेश्चन. You have asked me to share the complete question on the screen. अब स्क्रीन पे एक बार में पूरा क्वेश्चन नहीं आ पाएगा, नोट्स नहीं मिलेंगे मेरी क्लास में. I don't know what's the problem that some of the students they have not got the question, क्योंकि जो मैंने क्वेश्चन दिया है वो मैंने क्वेश्चन आप लोगों के साथ PDF में चैट बॉक्स पे शेयर किया है. You just check the chat box so that you can have the question. Okay, Sachin has asked me, there are two classes going on, which one to attend. It's up to you which lecture you want to attend. I think अभी दोनों ही lectures आपके final accounts के चल रहे हैं. आपको जहाँ पे भी आप join कर रहे हैं, आपको जो better लग रहा है वहाँ पे आप कर सकते हैं. It's not the issue. Okay, one of the students has said why live classes are not started. These are live classes. Just because of some network issues, I'm not sharing my video. I'm just sharing my screen with you all. But these lectures are the live lectures. It's not necessary to take lectures because you don't have attendance marks. But if in case you want to attend, it would be better because you'll be able to know what actually is supposed to be done. Okay, Banpreet Kaur has said that this kind of question is not there in the book, final accounts के chapter में. Maybe कि आपने शायद सारे नहीं देखे हैं. You'll be getting such kind of questions only. Okay, so many messages you are just typing. I just request you all, in case you have some query, then please write. आप फालतू के आप messages मत कीजिए, क्योंकि कोई भी important message किसी का होगा, then I'll miss that. Okay, you have not received the क्वेश्चन. I'll just आप लोगों के पास जब स्क्रीन पे एक ऑप्शन आ रही है, अब बार बना हुआ आ रहा होगा जिसमें कॉल एंड
ऑडियो वीडियो की ऑप्शन है, वहाँ पे चैट बॉक्स है. इन चैट बॉक्स आई हैव शेयर्ड द क्वेश्चन विद यू ऑल. In case you have not received it, I'll just upload it again so that you just check the chat box. Okay, I have shared it again with you all in the meeting chat. आप उसमें check कर लीजिए, and then you will be getting the question. In case I think I have missed some of the messages from you all people. In case any one of you has made some WhatsApp group of your all the students, then just let me know. I can share my mobile number so that you can add me there also. And in case you'll be having some doubts in accounts paper, then we can solve them. Okay, now I'll just start with the question because we have shortage of time. We have only 15-16 lectures in which I'll just try to cover up maximum of chapters. Uh, Final accounts may, I hope you all remember the basic format. We prepare 3 accounts: trading account, profit and loss account, and balance sheet, and in which all the direct expenses, opening stock plus purchases, and all the direct expenses are on the debit side of the trading account, and on credit side you have the net sales figure and closing balance, and the account will give you the balance of gross profit or gross loss you have earned or incurred during the year. Then the balance is transferred to the profit and loss account, and in which you have to transfer all the expenses, indirect expenses or revenue and income on the credit side, expenses or losses on debit side, and we'll be having the net profit or net loss figure, and in last we prepare the balance sheet. Basic आपको I think it's clear to you all. I don't know why you all people just call me, because I'm just teaching. In case you have any problem and you have some WhatsApp group, you just can add me in that WhatsApp group. Just let me know in case you have, you know, some group you have created. Now, I hope you all have the question with you all people. We can start with the solution. I'll just share the Excel sheet and I'll just solve the question right now in front of you, and I hope the Excel sheet is visible to you all right now. And in case there is different group for every subject as of now, so we have to create a different group for financial accounting. Okay, I'll just I'm just sharing my number with you. Any one of you just shared my mobile number with you all. You just can do, what you can do is you just create a group of financial accounting and just share the link here in the chat box so that everyone can join. And I hope the Excel sheet, I don't know. Okay, now I think the Excel sheet must be visible to you on my screen. I have shared the question. Now I'll start with the solution. We have to prepare the trading account. Trading account. I'm not going in the whole format trading account of for the year ending on. You just can write it on your trading account. Then if I prepare the profit and loss account, then I'll just you have to prepare the balance. फॉर्मेट पे मैं नहीं अभी जा रही हूँ, फॉर्मेट आप लोग देख सकते हैं. द फॉर्मेट इज पर्टिकुलर्स अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में यू हैव कैपिटल अकाउंट, कैपिटल साइड, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, अमाउंट एंड एसेट्स एंड योर, ये आपका बेसिक फॉर्मेट बनेगा. नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट एंट्री विच इज गिवन. जब आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, इट विल बी टोटली अप टू योर प्रैक्टिस कि आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं. अभी सिर्फ समझाने के लिए व्हाट आई एम डूइंग इज
कि जो आप लोगों को ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में कोई भी ट्रांजेक्शन दी हुई होगी वो आपके ये 3 अकाउंट्स में से कहीं पर भी एक जगह जाएगी, और जो आपकी ट्रांजेक्शन्स आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दी हुई होती है वो जो होंगी वो कम से कम आपके 2 अकाउंट्स को इम्पैक्ट करेगी। जो हम लोगों ने डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ा था, डुअल एस्पेक्ट यही कॉन्सेप्ट है कि कोई भी एक जो ट्रांजेक्शन हो रही है विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू मॉनेटरी टर्म्स, वो आपके रिकॉर्ड जब होगी तो वो आपकी कम से कम 2 अकाउंट्स को इम्पैक्ट जरूर करेगी, जिसमें एक अकाउंट डेबिट जरूर होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा। वही आपका कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन का आता है। अकाउंटिंग इक्वेशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? अकाउंटिंग इक्वेशन में बेसिकली आपकी जो अकाउंटिंग इक्वेशन है वो क्या होती है? एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो एवरी टाइम इट हैज टू बी इक्वेटेड, हमेशा जितने भी टोटल वैल्यू एसेट्स की है वो कैपिटल प्लस लायबिलिटीज के बराबर होनी चाहिए। नाउ दिस इज द अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट. Now coming to the question. In question you have been given the trial balance on 31st of March 2020. You have to prepare the final accounts. Now if I just transfer all the figures which are given in the ट्रायल बैलेंस, जो आपको इन्फॉर्मेशन दी हुई है एक्सट्रैक्ट करके डेबिट और क्रेडिट साइड पे, यू जस्ट नीड टू ट्रांसफर ऑल दीज अकाउंट्स इन दीज एंट्रीज in at one place of these all these 3 accounts. तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस या बैलेंस शीट में कहीं एक जगह आएगा. Now starting with the first entry which is given, now we are preparing the accounts on 31st March 2020. इसका मतलब 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च तक के हम अकाउंट्स बना रहे हैं. अब आपको जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी हुई है उसमें सबसे पहली एंट्री दी हुई है स्टॉक एज ऑन 1st of April 2019 7,40,000. नाउ दैट इज द ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक इज ट्रांसफर्ड इन द ट्रेडिंग अकाउंट. तो ट्रेडिंग अकाउंट में व्हाट आई विल राइट इज ओपनिंग स्टॉक 7,40,000. देन द सेकेंड एंट्री इज सन्ड्री डेटर्स. 7 लाख रुपए के आपको डेटर्स दिए हुए हैं. डेटर्स आर दी एसेट्स, तो आपके डेटर्स बैलेंस शीट में चले जाएंगे 7 लाख रुपीस की. अब ये वाली चीज आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि अभी क्योंकि मैं क्वेश्चन आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ, वी आर डूइंग इट वन बाय वन. पूरा क्वेश्चन अभी पढ़ा नहीं है, सारी ट्रांजेक्शन्स इकट्ठे होंगी नहीं. तो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ इज कि जो भी ट्रायल बैलेंस की ट्रांजेक्शन्स हैं, एंट्रीज है, अभी सिर्फ वो ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. तो लाइक डेटर्स में जनरली वी हैव सम और द अदर एडजस्टमेंट. तो जो नेट अमाउंट आएगा वो उसके हिसाब से आएगा. फिलहाल मैंने डेटर्स में 7 लाख रुपए दिखाए हैं लिखकर. देन यू हैव थर्ड एंट्री. डेटर्स की आपके बैड डेट्स की दी हुई थी. बैड डेटर्स लिखे हुए थे 20,000 के. बैड डेट्स जो आपके होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं? बैड डेट्स होते हैं, व्हाट आर दी बैड डेट्स? बैड डेट्स वो होते हैं जो हमारे डेटर्स हैं, जिनसे हमें पैसा लेना है, जिनको हमने उधार पे पैसा दिया हुआ है, वो हमें पैसा देंगे. और जब वो पैसा देते नहीं, जब तक हमारा उनसे पैसा हमें लेना है, क्रेडिट सेल्स के टाइम पे जो हमारे डेटर्स हैं उनसे हमें पैसा लेना है. बैड डेट्स वो हैं जो हमें पैसा दे नहीं रहे हैं, जिनसे हमें पैसा तो लेना था, अब उन्होंने मना कर दिया, कोई भी रीजन से उन्होंने कह दिया कि हम पैसा नहीं देंगे. तो वो पैसा आपका नुकसान में चला गया, पैसा आपका डूब गया. तो दीज 20,000 रुपीज बैड डेटर्स जो लिखे हैं, बैड डेट्स या बैड डेटर्स, ये आपके लिए नुकसान है कि जिनको आपने 20,000 की क्रेडिट सेल्स की थी, कितने की भी की थी, उसमें से 20,000 रुपए आपके डूब गए हैं, पैसा आपको नहीं मिलेगा. This is the loss you have incurred or beared during 1920. तो बैड डेट्स जो आपके आएंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएंगे 20,000 रुपए से. देन यू हैव बिल्डिंग. बिल्डिंग इज द एसेट. इट इज टू बी ट्रांसफर्ड द बैलेंस शीट. द वैल्यू इज 10 लाख रुपीज. आपकी बैलेंस शीट में चली जाएगी. आई एम जस्ट स्किपिंग सम ऑफ द लाइंस डेटर्स और बिल्डिंग में, क्योंकि मुझे मालूम है कि डेटर्स में अभी ट्रांजेक्शन आएगी, तो आई एम जस्ट स्किपिंग सम स्पेस. देन यू हैव accrued income of 30,000 rupees. उसके accrued income का मतलब है कि आपने एक इनकम आपकी होनी थी, लेकिन accrue तो हो गई मगर मिली नहीं है. इसका मतलब आपने कोई काम किया जिसके बदले में आपको 30,000 रुपए मिलने थे, लेकिन वो अभी मिले नहीं है.
तो जो मिले नहीं है तो वो आपने रिसीव नहीं किए, यू विल बी गेटिंग दोज 30,000 रुपीज लेटर ऑन, कुछ टाइम कभी भी मिलेंगे मगर वो मिलेंगे, वो आपने काम आप करके दे चुके हो। अब क्योंकि ये अक्रूड इनकम आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसका मतलब इसकी सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं, और अक्रूड इनकम का मतलब है ये आपका एसेट बन जाता है क्योंकि आपको किसी से पैसा लेना है। तो व्हाट आई एम डूइंग इज, इफ इट इज गिवन इन दी ट्रायल बैलेंस, तो इसका मतलब बाकी और कहीं नहीं आएगा, तो अक्रूड इनकम 30,000 की बैलेंस शीट में ट्रांसफर हो जाएगी, बिकॉज इट हैज ऑलरेडी बीन शोन इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट पे उसका इम्पैक्ट हम दिखा चुके हैं क्योंकि वो ट्रायल बैलेंस में हमारा ऑलरेडी है। एडजस्टमेंट्स जो होंगी वो कम से कम 2 जगह जाएगी। देन यू हैव बिल्स रिसीवेबल 6 लाख रुपीज के, दे आर योर एसेट्स, तो ये आपके 6 लाख रुपए के बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट में चले जाएंगे। प्लांट एंड मशीनरी अगेन इज द एसेट, प्लांट and machinery I'm just writing in short. Plant and machinery 3,60,000 shown in the balance sheet. Then you have depreciation on plant and machinery 40,000 rupees, repairs to plant 32,000, ये सारे आपके expenses हैं, ये आपके सारे के सारे profit and loss में चले जाएंगे। Now this will be depreciation on plant and machinery 40,000 to be shown in the debit side of profit and loss account. Repairs will be shown in the debit side 32,000 rupees. Then you have salaries 80,000 rupees, it will be transferred in the profit and loss account. And just make sure कि अगर wages है, salaries है, तो उसमें कहाँ क्या करना है। wages अगर है तो wages are paid to the workers, तो to be transferred to trading account, debit side में आ जाएगा अगर wages हैं। अगर salaries हैं तो salaries office staff को या administrative staff, managers, employees को दी जाती है, तो वो manufacturing से directly जुड़े हुए नहीं होने की वजह से indirect expense मानकर profit and loss में चला जाएगा। In case you have wages and salaries इकट्ठा दिया हुआ है, तो आप वेजेस एंड सैलरीज अगर लिखा है तो वेजेस मान के आप ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाओगे, अगर सैलरीज एंड वेजेस है देन इट हैज टू बी शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नेक्स्ट इज यू हैव इनकम टैक्स। इनकम टैक्स के जो ट्रांजैक्शन है, इनकम टैक्स इज गिवन इन द ट्रेडिंग अकाउंट इन योर इसमें ट्रायल बैलेंस में, तो इसका मतलब इसकी हम ऑलरेडी एडजस्टमेंट्स कर चुके हैं। तो जो अब आप अगर इनकम टैक्स आपको इसमें दिया हुआ ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो इट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इन दी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अदरवाइज वो उसमें भी जाएगा। अब यहाँ अगर ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है तो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज, जो बैलेंस शीट में कैपिटल प्लस लायबिलिटीज में कैपिटल का अमाउंट होगा उसमें से आपको लेस करके दिखाना है, लेस इनकम टैक्स। अभी मैंने कैपिटल लिखी नहीं है, बट व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट डिडक्टिंग द अमाउंट फ्रॉम द कैपिटल, तो वट एवर द अमाउंट इज उसमें से 10,000 रुपए इसके माइनस हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे इनर कॉलम में अभी लिख रही हूँ 10,000, या फिर अगर क्योंकि मैं एक्सेल शीट यूज कर रही हूँ तो आई एम जस्ट राइटिंग इट हेयर, ये 10,000 आपके यहाँ से कैपिटल में से माइनस हो जाएंगे। You just please prepare it in a proper way. Then you have cash in hand. Cash in hand है 40,000. It will be transferred in the balance sheet. Cash in hand 40,000 rupees. Then you have land 4,90,000. Then you have depreciation on building. Depreciation जो होगा बिल्डिंग का वो आपका PLN में चला जाएगा. The amount is 50,000 rupees. Then you have purchases less returns, that means net purchases थे तो net purchases आपके trading account में debit side पे आ जाएगा amount, and the amount is 24,70,000. ये आपके सारे debit side के हमने तीनों में से जहाँ पे भी जाने थे ट्रांसफर कर दिए हैं. Then coming to the credit side. Credit side पे you have the amount of creditors. Creditors में you have 4,66,000 rupees. Then bills payable 60,000 के.
नेक्स्ट इज यू हैव सेल्स। सेल्स में आपको जो अमाउंट दिया हुआ है दैट इज 50 लाख। कैपिटल अकाउंट आपको दिया हुआ है 12 लाख रुपए का। देन यू हैव बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट 2,56,000 का। बैंक ओवरड्राफ्ट मींस आपने बैंक से पैसे एक्स्ट्रा निकाले हुए हैं, विड्रॉ किए हैं, तो अभी आपके लिए लायबिलिटी बन गई है, आपको ये बैंक को पैसा वापस देना है, तो ये लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट पे आ जाएगी। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000। अब ये ट्रायल बैलेंस में होने की वजह से आपकी सिर्फ लायबिलिटी रह गई, जो आपकी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे आएगी। प्रॉफिट एंड लॉस पे उसका इम्पैक्ट हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके हैं। Then you have discount on credit side. Discount on credit side means that you have received the discount. तो discount में, rent में, interest में, dividend में कुछ भी हो सकता है. It has to be मतलब it may be the paid one or it may be the received one. तो discount given on the credit side means that it is the discount you have received. So it's an income. तो profit and loss में the discount received will be on the credit side of profit and loss account 80,000 rupees. You have provision for doubtful debts on the credit side. That means ये last year का provision था, provision for doubtful debts, ये last year जो आपने बनाया था। और इसका क्या मतलब है कि 1,20,000 का आपने लास्ट ईयर प्रोविजन बनाया था कि ये आपका 1,20,000 रुपए डूब सकते हैं, आपको डेटर्स से शायद ना मिले। प्रोविजन आपने बनाया था, शायद क्रिएट किया हुआ था प्रोविजन कि हो सकता है कि ये पैसा आपका डूब जाए, लेकिन वो डूबा नहीं। तो एक तरीके से आपका फायदा ही हुआ ना कि आपका पैसा मरा नहीं, डूबा नहीं, जो आपने एक्सपेक्ट किया था। तो ये आपको वापस से इनकम की तरह दिखाना है। तो लास्ट ईयर वाला जो होगा वो आपका क्रेडिट साइड पे आपका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स का बैलेंस आ जाएगा। नाउ व्हाट वी हैव डन टिल नाउ इज वी हैव ट्रांसफर्ड ऑल द एंट्रीज व्हिच वर गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। नाउ कमिंग टू द एडिशनल इन्फॉर्मेशन। Now the additional information, first information is giving you the closing stock value on 31st of March 2020 as 7 lakh rupees and the realizable value is 6 lakh rupees. Generally जो आप लोगों को questions मिलेंगे उसमें लिखा होगा कि closing stock की डेट के साथ में वैल्यू कितनी है। अगर क्वेश्चन ये कहता है कि क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू है वो 7 लाख रुपए है, तब आपको क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक इज टू बी, अब जितनी भी एडजस्टमेंट्स आएंगी जस्ट रिमेंबर कि वो कम से कम 2 अकाउंट्स में या 2 जगह जरूर आएगी, कम से कम 2 जगह आएगी। तो क्लोजिंग स्टॉक जो होगा, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ शो करते हैं, एक हम करते हैं शो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे और एक हम बैलेंस शीट में, क्योंकि वो हमारा एसेट है। तो हमें क्या करना है, एक तो आप ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाओगे तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक आपका आ जाएगा क्रेडिट साइड पर और वही सेम आपका चला जाएगा बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। अब यहाँ अमाउंट कौन सा जाएगा, नाउ द क्वेश्चन सेज दैट द क्लोजिंग स्टॉक इज 7 लाख रुपीस, तो दोनों जगह 7 लाख रुपए से वैल्यू चली जाएगी। यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक की जो कीमत थी वो 7 लाख रुपए थी 31 मार्च को, लेकिन जो उसकी रियलाइजेबल वैल्यू है वो 6 लाख रुपए है। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब भी हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक इज ऑलवेज वैल्यूड एट द कॉस्ट प्राइस जो हमारे पास है और द मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। हमारे लिए जो उसकी कीमत है वो, या जो मार्केट में रियलाइजेबल वैल्यू है, मार्केट वैल्यू जो है, उन दोनों में से जो भी वैल्यू कम होगी उस पर हमें क्लोजिंग स्टॉक को दिखाना होता है। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक की 2 फिगर्स दी हुई हैं, एक कीमत जो हमारे हिसाब से है, एक कीमत मार्केट के हिसाब से है। तो जो कम होगी हमें उसके हिसाब से उसको वैल्यू करके अकाउंट्स में शो करना होता है। तो मेरे अपने हिसाब से उसकी 7 लाख की कीमत है, मगर मार्केट वैल्यू उसकी 6 लाख है, तो जो भी कम है मुझे उस पर दिखाना है। तो मैं जो ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में दिखाऊंगी वो 6 लाख रुपए से ट्रांजेक्शन कर दूंगी दोनों जगह, तो बैलेंस शीट में और
ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 6 लाख रुपीज इंस्टेड ऑफ 7 लाख रुपीज। तो जस्ट रिमेंबर कि अगर मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस दोनों दिए हुए हैं तो जो भी कम होगा अमाउंट उस वाले अमाउंट पे हमें क्लोजिंग स्टॉक को अकाउंट्स में शो करना होता है। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। now I'm just skipping the second entry information, which is write off 60,000 bad debts and maintain a provision for doubtful debts at a rate of 5%, क्योंकि इसकी आधी अभी बता सकती हूँ, आधी पे अभी और इम्पैक्ट आएगा। I'm just moving to third transaction right now, क्योंकि जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको भी पता चल जाएगा कि कौन सी इसकी पहले करनी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, हम सब जो डेटर्स होते हैं हमारे बैलेंस शीट में उस पर नेट जो डेटर्स होते हैं उस पर प्रोविजन क्रिएट करते हैं कि भाई इतना पैसा हमें इन टोटलिटी में डेटर से मिलना है। अब उस पर 5% अगर मैं कहूँ कि प्रोविजन बनाना है तो उस नेट डेटर्स पे जो हमें मिलना है पैसा उस पर 5% प्रोविजन बनाऊंगी कि इतना पैसा हो सकता है मुझे ना मिले। आई एम जस्ट एक्सपेक्टिंग द लॉस और मैं उसको शो कर रही हूँ। तो आई एम जस्ट स्किपिंग दिस इंफॉर्मेशन सेकेंड वन, आई एम जस्ट मूविंग टू थर्ड वन। नाउ द थर्ड ट्रांजेक्शन, आप ये चीज ये जो थर्ड ट्रांजेक्शन है जो आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि पेपर में इस तरह के एडजस्टमेंट्स आती हैं। ठीक है, द थर्ड ट्रांजेक्शन सेज goods costing 1 lakh were sent to the customer on approval basis on 30th March 2020. They were recorded as actual sales and the rate of gross profit was 20% of sales. अब इसमें क्या होता है? This is the entry for goods sent on approval basis. Now what is the concept of goods sent on approval basis या sales on approval basis? As the name suggests, सेल की मैंने मगर वो अप्रूवल बेसिस पर है। इसका मतलब है कि जिनको मैंने सेल्स की है, जो मेरे कस्टमर्स हैं, मैंने उनको गुड्स तो दे दिए, प्रोवाइड कर दिए हैं, लेकिन और आपने सेल्स भी दिखा दी है अभी फिलहाल, मगर उनके पास ऑप्शन है कि अगर उन्हें गुड्स पसंद नहीं आएंगे, वो अप्रूव अगर नहीं करेंगे तो वो मुझे गुड्स वापस दे सकते हैं, दे देंगे। तो फिर वो मुझे रिवर्स करके दिखानी पड़ेगी। अब अगर मान लीजिए मैंने गुड्स किसी को दिए हैं, सेल्स अगर कर रही हूँ तो सेल्स मेरी दो तरीके से होती हैं, एक कैश सेल्स और एक क्रेडिट सेल्स। कैश सेल्स अगर हम करते हैं तो मेरा स्टॉक खत्म हो जाता है, सेल्स बढ़ जाती हैं और कैश मेरे पास आ जाता है, ट्रांजेक्शन हो जाती है खत्म। जब हमारे पास गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस की ट्रांजेक्शन्स होती हैं तो इट इज अज्यूम्ड कि उसमें पैसा हमें अभी नहीं मिला है, क्योंकि मैंने गुड्स तो दे दिए कस्टमर को और उसको ये ऑप्शन दी है कि भाई आपके पास ऑप्शन है, आप चेक कर लो, तसल्ली कर लो, आपको अगर गुड्स पसंद आएंगे तो आप रख लीजिएगा और मुझे पेमेंट कर देना, और वरना मेरे गुड्स मुझे वापस दे देना। वो कॉन्सेप्ट होता है गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस का। तो वंस वी हैव सेंट द गुड्स ऑन अप्रूवल बेसिस, इट इज टू बी रिकॉर्डेड एज द सेल्स। तो मुझे सेल्स तो दिखानी है, मैंने सेल्स दिखा रखी है, लेकिन वो कौन सी सेल्स होंगी? क्रेडिट सेल्स की, उधार पर, कि गुड्स तो मैंने दे दिए, पैसा मुझे अभी नहीं मिला, कुछ टाइम के बाद क्या होगा कि या तो मुझे अप्रूवल दे देंगे कस्टमर्स और मुझे पैसा दे देंगे मेरा, या फिर वो अगर मेरा प्रोजेक्ट जो प्रोडक्ट है वो अगर डिसअप्रूव कर देते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता है, तो वो पैसा भी नहीं देंगे और मगर मेरा वो गुड्स वापस कर देंगे। तो गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस आर जस्ट ट्रीटेड एज द क्रेडिट सेल्स। तो मान लीजिए अगर मैंने 1 लाख रुपए के गुड्स किसी कस्टमर को दिए हैं तो वो अप्रूवल बेसिस पर अगर दिए हैं तो वो क्रेडिट सेल्स की तरह मैं उसको शो कर दूंगी। अब क्रेडिट सेल्स का मतलब है कि मेरे गुड्स चले गए, सेल्स बढ़ गई और डेटर्स बढ़ गए, तो स्टॉक मेरा कम हो जाएगा, डेटर्स मेरे बढ़ जाएंगे और सेल्स में जो भी अमाउंट होगा वो बढ़ जाएगा। तीन जगह इसका इम्पैक्ट आता है। The moment you have credit sales, what happens? Actually कौन कौन से अकाउंट पे इम्पैक्ट आएगा? स्टॉक मेरा कम हो गया क्योंकि मेरे पास से स्टॉक चला गया, गुड्स चले गए, कस्टमर को मैंने क्रेडिट सेल्स के तौर पे पैसे गुड्स दिए हैं, तो क्रेडिट जो मेरे क्रेडिट सेल्स थी उसके हिसाब से मेरे डेटर्स बढ़ जाएंगे और सेल्स की फिगर मेरी उतने ही अमाउंट से बढ़ जाएगी। ये तीन अकाउंट मेरे इम्पैक्ट होते हैं क्रेडिट सेल्स के ट्रांजेक्शन पे। अब इसमें दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपको समझना है,
मैंने ये कहा कि 1 लाख रुपए के गुड्स मैंने कस्टमर को दिए हैं, तो वो 1 लाख रुपए उसकी कॉस्ट प्राइस है या उसकी सेलिंग प्राइस है, ये आपको देखना है क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से। अब आपके पास दो प्राइसेस हैं, एक है कैश आपके कॉस्ट प्राइस और एक होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस वी ऑल नो दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। तो मैं अगर ये कहूँ कि मैंने अपने कस्टमर को 1 लाख रुपए के गुड्स दिए हैं, तो वो मेरा हो गया सेलिंग प्राइस, उसमें मेरा प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्लूसिव है। अब मुझे फिर क्या करना है, मुझे कैलकुलेशंस करनी है, जहां मुझे ये कैलकुलेट करना है कि उस सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट कितना ऐड था। तो बेसिकली कॉस्ट प्राइस क्या है, मुझे कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करनी है। रीजन बीइंग कि जो मेरा स्टॉक है, स्टॉक मेरा जब भी कम हो रहा है या बढ़ रहा है, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही होगा, ठीक है। और जो सेल्स है वो मेरी हमेशा सेलिंग प्राइस पे होती है। स्टॉक मेरा हमेशा मार्केट प्राइस या कॉस्ट प्राइस पे होगा, विच एवर इज लेस। तो वहाँ सेलिंग प्राइस तो कुछ है नहीं मेरे लिए, वो तो परचेज प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस में मुझे कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। तो इन केस यू हैव द ट्रांजैक्शन फॉर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, आपको दो चीजें करनी है, एक जो ट्रांजैक्शन करनी है, और उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए यू नीड्स टू नो कि जो भी गुड्स थे उनकी कॉस्ट प्राइस क्या है और उनका सेलिंग प्राइस क्या है। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हाउ टू गो फॉर द कैलकुलेशन। अब क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है गुड्स कॉस्टिंग 1 लाख रुपीज वो सेंट टू द कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस। इसका मतलब गुड्स कॉस्टिंग का मतलब है कि वो कॉस्ट प्राइस है, लाख नहीं सॉरी 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपए की कॉस्ट के गुड्स मैंने दिए हैं। अब इसमें सेलिंग प्राइस मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी कि उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, क्योंकि मेरे लिए दोनों ही चीजें मुझे कैलकुलेट करके अपने अकाउंट्स में शो करनी होती हैं। स्टॉक मेरा कॉस्ट प्राइस पे जाएगा और सेल्स में और डेटर्स में सेलिंग प्राइस आएगा। तो कॉस्ट प्राइस मुझे इस क्वेश्चन में दी हुई थी, उसके अलावा मुझे दिया हुआ था जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 20% ऑन सेल्स है। अगर कॉस्ट पे होता है 20%, तो मेरे लिए कैलकुलेशंस इजी थी। अब वी ऑल नो दैट सेलिंग प्राइस इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। अब ये वाली इक्वेशन को आपको सॉल्व करके सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। कॉस्ट प्राइस मुझे मालूम है, सेलिंग प्राइस मान लीजिए मैं मान के चल रही हूँ, लेट्स से इट्स ए, let the selling price be x or a, whatever you want to write, then the gross profit or the profit जो आपको दिया हुआ है, profit is 20% on sales, तो 20% on sales। अब sales मैंने क्या ली, a, selling price अगर मैं a ले रही हूँ या sales, basically I'm just taking sales as a, तो gross profit क्या होगा 20% ऑफ ए, तो 20/100 ए होगा। 20/100 को मैं लिखना चाहूँ तो आई कैन जस्ट राइट 1/5 ए, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा। अब इसको इक्वेशन अगर मैं पुट कर दूं तो इक्वेशन क्या बनेगी, इफ आई जस्ट राइट इट लाइक दिस, कॉस्ट सेलिंग सेल्स माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट। ये अगर मैं इक्वेशन को सॉल्व करूं तो सेल्स कितनी थी, ए थी, माइनस 1/5 ऑफ ए प्रॉफिट मेरा था, विल बी इक्वल्स टू द कॉस्ट। कॉस्ट कितनी थी 1 लाख रुपए। अब मैं इसको अगर एलसीएम लेके पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लूं तो इट विल बी 4/5 ए इज इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज। तो ए इज इक्वल्स टू 1 लाख रुपीज इंटू 5/4। आई होप कि ये सिंपल मैथ्स की कैलकुलेशंस आप लोग कर सकते हैं। इफ आई जस्ट सॉल्व दिस, आई एम जस्ट गेटिंग 1,25,000। ये क्या निकल कर आया, ए, तो ए इज इक्वल्स टू 1,25,000 जो आया है। ए क्या था मेरा, सेल्स थी, मैंने अज्यूम करी थी सेल्स, तो इसका मतलब कॉस्ट प्राइस जो मैंने गुड्स अपने कस्टमर्स को अप्रूवल बेसिस पे दिए हैं उसकी कॉस्ट है 1 लाख रुपए और उसका सेलिंग प्राइस है 1,25,000।
इसका मतलब 25,000 का मैं प्रॉफिट अर्न कर रही थी या करूंगी अगर वो अप्रूवल हो जाती है। तो अब मेरे जो अकाउंट्स हैं वो कौन कौन से इम्पैक्ट हो रहे हैं, एक है एक मेरे होंगे डेटर्स और एक होगा स्टॉक। ये तीन अकाउंट्स मेरे इम्पैक्ट होते हैं जब भी क्रेडिट सेल्स होती हैं। अगर सेल्स होती हैं गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस है तो क्या होगा, सेल्स मैंने इंक्रीज करके दिखाई होंगी। ऐसे ही डेटर्स मैंने इंक्रीज करके दिखाए होंगे अगर मैंने सेल्स की एंट्री की है, और जो स्टॉक होगा वो मैंने डिक्रीज करके दिखाया हुआ होगा। ये तीन एडजस्टमेंट्स मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, जिसमें सेल्स को जो मैंने दिखाया होगा वो सेलिंग प्राइस पे दिखाया होगा, डेटर्स को भी सेलिंग प्राइस पे दिखाया होगा, और स्टॉक जो कम किया होगा वो कॉस्ट प्राइस पे कम किया होगा जब मैंने ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की होगी। अब क्वेश्चन में क्या है कि आपको ये चीज देखनी है कि पूरे साल जो हम 19-20 का अकाउंट्स बना रहे हैं ये हमने भेजे थे 30 मार्च 2020 को और हमने एक्चुअल सेल्स दिखा दिया। अब अगली चीज आपको जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज के हिसाब से क्या वो अप्रूव हो गए हैं। अगर तो अप्रूव हो गए हैं तो हमें कुछ नहीं करना, कुछ भी एंट्री नहीं कर रही है। लेकिन अगर वो अप्रूव नहीं हुए हैं, अगर क्वेश्चन चुप है, लैंग्वेज कहीं कुछ नहीं लिखी, जैसे इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि अप्रूवल मिली या नहीं मिली, तो हम ये मान के चलेंगे कि अप्रूवल नहीं मिली है। और अगर क्वेश्चन में लिखा ही है कि अप्रूवल अभी मिली ही नहीं है तो भी आपके लिए वही सिचुएशन है कि अप्रूवल नहीं मिली है। तो क्वेश्चन अगर ये मेंशन करता है कि अप्रूवल मिल चुकी है, मेंशन कर रहा है, तो आपको कोई उस एंट्री का कुछ नहीं करना है, इग्नोर कर देना। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है कि अप्रूवल नहीं मिली है या आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो आप मान के चलोगे कि अप्रूवल नहीं मिली है, तो आपको इसका सब रिवर्स करना पड़ेगा। तो अब मैंने पहले क्या किया था, सेल्स और डेटर्स बढ़ाकर दिखाए थे सेल्स वैल्यू पे और स्टॉक मैंने कम किया था कॉस्ट प्राइस पे। अब इसका रिवर्स करूंगी तो रिवर्स एंट्री जो करूंगी वो क्या करूंगी, जो मैंने इंक्रीज किया था उसको डिक्रीज करना है, तो सेल्स और डेटर्स को मुझे डिक्रीज करना है और स्टॉक में वापस मेरे पास वो आ जाएगा। अगेन इट विल बी स्टॉक में कॉस्ट प्राइस पे और सेल्स और डेटर्स में सेलिंग प्राइस पे। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। अब इसको ट्रांजेक्शन को एंट्रीज को उसमें करके देखते हैं कि अकाउंट्स में कहाँ कैसे जाएगी। कॉस्ट थी 1,00,000 रुपए की और सेल्स थी 1,25,000 रुपए की। अब ये आप जो ट्रांजेक्शन दिखाओगे, यहाँ पे जीरो है एडिशनल, तो हम कैसे शो करेंगे, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है ट्रेडिंग अकाउंट में वहां पर हम ऐड कर देंगे ऐड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस। I'm just writing in a short GSAB, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, वो हम क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट प्राइस पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे 1,00,000 रुपए से हम इसको ऐड करके दिखा देंगे और सेम यही एंट्री हम बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करके क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करके दिखा देंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक मेरा जो आएगा वो मेरा टोटल 7,00,000 रुपए का आ जाएगा, बैलेंस शीट में भी और ट्रेडिंग अकाउंट में भी। एक ट्रांजेक्शन तो हमने ये की है, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस की कॉस्ट प्राइस जो भी होगा वो हम दोनों जगह ट्रेडिंग अकाउंट में और बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक में ऐड कर देंगे एट गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस एट कॉस्ट प्राइस। आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। इसके अलावा में जो दूसरी एंट्री होगी वो क्या होगी, मैंने सेल्स बढ़ाकर दिखाई थी सेल्स वैल्यू पे और डेटर्स भी बढ़ाकर दिखाए थे, वो मुझे कम करने पड़ेंगे। तो सेल्स में मैं क्या करूंगी, जो ट्रेडिंग अकाउंट में सेल्स थी सेल्स में से लेस कर देंगे, लेस सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, यहां पर आएगी सेलिंग प्राइस 1,25,000 और यही ट्रांजेक्शन आप क्या करोगे, बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस कर दोगे। डेटर्स जो 7,00,000 के थे उसमें से हम दिखा देंगे लेस गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 1,25,000। आई होप द गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस की ट्रांजेक्शन जो है वो आप लोगों को क्लियर है। अगर किसी को डाउट है तो आप प्लीज पूछ लीजिए, otherwise we can just continue. Good sent on approval basis ki make sure that it's clear to you all, because every time you'll be having the question in paper you'll be getting such kind of transactions, additional information में ये adjustments मिलती हैं question में। अगर इसमें doubt है तो आप पूछ लीजिए। Just because of the shortage of time what we can do is I'm just
stopping. I'll just stop here, and we can continue with the rest of 3 adjustments in our next lecture. Till now, in case you have any problem, you just can ask me. Oh my God, 6:22. मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने पीडीएफ के लिए ही बोला है कि दे आर नॉट गेटिंग द पीडीएफ, दो आई हैव शेयर्ड द क्वेश्चन इन पीडीएफ फॉर्म इन द चैट बॉक्स. मैंने फाइल सेक्शन पे भी उसको अपलोड किया हुआ है, तो आप फाइल सेक्शन पे आप चेक कर लीजिए या चैट बॉक्स में देख लीजिए. यू विल बी गेटिंग द पीडीएफ क्वेश्चंस इन दैट. वन ऑफ द स्टूडेंट्स हैज आस्क्ड कि एसओएल मॉड्यूल सफिशिएंट है या नहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. व्हाट आई विल जस्ट what I suggest is that try to cover with the SOL modules you are getting, but apart from those modules, if it is possible for you, then you just try to go through some one book. आपको बहुत ज़्यादा बुक्स में से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आप कोई भी एक बुक ले लीजिए. बुक के नेम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए थे. I don't know, majority of the students have given same messages again and again. आज के अगर एडजस्टमेंट्स में इन केस यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप मुझसे पूछ लीजिए, क्योंकि अविनाश, आई थिंक वन ऑफ द स्टूडेंट हैज shared the link to join the WhatsApp group. You all people can join that group through that link. I have just made it public. आप उसके थ्रू आप WhatsApp group पे join कर लीजिए, so that in case you have some queries you can just sort them out in that group also, and it would be easy for me also to share the questions in that group. स्क्रीन अभी नहीं दिखेगी बिकॉज आई हैव स्टॉप्ड शेयरिंग माय स्क्रीन, क्योंकि क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं अभी. वी डोंट हैव. ओके, युक्ता हैज आस्क्ड मी टू एक्सप्लेन द इनकम टैक्स एंट्री अगेन. जस्ट मेक श्योर कि जो हम लोग रिमेंबर वन थिंग, कि जो हम लोगों को एंट्रीज इसमें दी हुई होती है ट्रायल बैलेंस में, वो हमारी सारी ऑलरेडी एडजस्टेड एंट्रीज होती हैं. तो वो हम ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट में कहीं एक जगह दिखाएंगे, और बाकी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारी कम से कम 2 अकाउंट्स को इम्पैक्ट करेगी. अब अगर इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स बेसिकली क्या है? इनकम टैक्स इज द टैक्स लायबिलिटी व्हिच वी आर सपोज टू पे ऑन द इनकम वी हैव अर्नड. तो मैंने अगर कोई प्रॉफिट अर्न किया है उस पर मुझे इनकम टैक्स पे करना है. अगर वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में होता कि मुझे 10,000 रुपये, 20,000 रुपये इनकम टैक्स का पे करना है, इन्फॉर्मेशन में होता एडिशनल में, तो इसका मतलब उसकी कोई एडजस्टमेंट्स नहीं की हुई होती, तो वो कम से कम 2 जगह जाता. और वो आप क्या करते? आपके लिए वो एक्सपेंसेस हैं, तो वो आप प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे शो करोगे और बैलेंस शीट में कैपिटल में से माइनस कर दोगे. यहाँ इस वाले क्वेश्चन में इनकम टैक्स आपको ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, इसका मतलब प्रॉफिट की फिगर पे उसका इम्पैक्ट हम ऑलरेडी दिखा चुके हैं, वो ऑलरेडी एडजस्टेड है. तो मुझे सिर्फ उसको एक जगह कैपिटल में से कम करके दिखाना है, बाकी प्रॉफिट एंड लॉस में उसके एडजस्टमेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं. तो इन केस इनकम टैक्स इज गिवन इन द ट्रायल बैलेंस, दैट मीन्स द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट हैज ऑलरेडी बीन डन. यू जस्ट हैव टू डिडक्ट द इनकम टैक्स अमाउंट. वो आपकी लायबिलिटी है, आपको पे करना है, तो कैपिटल में से हम उसको माइनस करके दिखा देंगे. Now I hope it's clear to you, and the majority of the students have asked me to you don't have the question. I think Avinash, one of the students, has shared the WhatsApp link. You all just can join the WhatsApp so that we can be connected through the WhatsApp, and rest of the chat we can do there apart from the lectures. Now today's lecture is over. We have our next lecture. Okay, on 18th of January. That means next Monday we have a lecture. By the time, I just request you all that you all have the question with you,
You just try to attempt that question, and in case you have the SOL module plus any of the accounts book, you just can try to solve some of the questions, and in case you have any problem, then we can discuss in our next lecture. Otherwise, in next lecture we'll do some more questions or more entries of final accounts in the class on 18th of January, next Monday. Till then, take care. Have a good day. I hope you could understand the concepts which we discussed in the class. In case you have any doubt, you can ask me next time.